Okay, okay. As per our previous discussion, today we will revise the some part from unit number one. So, so we will start with our discussion from the noise. So, what is noise? Is in a communication system, noise is one of the important factor. Noise is a random in nature and interferes with the desired signal. So, any unwanted signal in the communication system is termed as noise. Okay, so there are two types of noise. One is the internal noise and one other is the external noise. After that, what we have to see, explain about sources of noise. Noise can be divided into two categories, internal and external. So here the correlated uncorrelated is written, but mainly we should understand that it is the nothing but internal noise and the external noise. Then how can you classify the external noise? One is the atmospheric noise, then the extraterrestrial noise, then the last one is the industrial noise. Explain about industrial noise. So industrial noise is nothing but a noise which is from the automotive ignition system. Okay, electric equipment when abruptly switched on or off produces the noise. Fluorescent light also produces noise. Industrial noise, being man-made noise, can be minimized by controlling it. तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, एटमॉस्फेरिक नॉइज़ में हमने क्या देखा था कि एटमॉस्फेरिक नॉइज़ में सबसे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक नॉइज़? थंडर स्ट्राइक और द थंडर स्टॉर्म और lightning discharge. So such type of lightning discharge we cannot control. It is the completely based on the nature. Okay, so that is the atmospheric noise. How can you classify the internal noise? So there are the 5 classification: thermal noise, Shor noise or the short noise, partition noise, low frequency and the flicker noise, and lastly the high frequency or the transit time noise. So these are the types of noise, and this is the revision of the unit number 1. Okay, so we will move forward. यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है क्या आपको? Any question you have to ask? Are you interested to ask any questions? Then you can ask, otherwise I will move forward. Okay, I will move forward. So next is the what is the extraterrestrial noise? Extraterrestrial noise comes from the sources of the spaces, which are the again divided into two groups, solar noise and cosmic noise. तो सोलर नॉइज़ और कॉस्मिक नॉइज़ क्या है? कॉस्मिक नॉइज़ ये ऐसा नॉइज़ है जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टार्स है अदर देन सन. सन भी एक स्टार ही है, लेकिन इट इज़ अ क्वाइट बिग और ह्यूज स्टार. सो सोलर नॉइज़ यानी सोलर सन पे ऐसे कुछ पार्ट्स है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ की तरफ क्या करते हैं, आते हैं, और वो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट द सोलर नॉइज़. कॉस्मिक नॉइज़ ऐसे नॉइज़ है कि जो स्टार्स से जो भी सिग्नल आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स आर अवेलेबल, और जो हमें रात में दिखते हैं, तो वो स्टार्स से भी ऐसे कुछ सिग्नल्स आते हैं कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं. ओके ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट द सोलर नॉइज़ एंड कॉस्मिक नॉइज़. उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फिल्टर टू बी रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़. बैंड पास फिल्टर इज़ यूज्ड. फिल्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए. स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द नॉइज़. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नॉइज़ आर द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ पे नॉइज़ डिपेंड है. द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंपोनेंट, गेन ऑफ द सर्किट and the resistance of the circuit. Increasing any of these factors will increase the noise. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये एक्सप्लेनेशन दिया है. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नॉइज आर द बैंडविड्थ, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंपोनेंट, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है कंपोनेंट में से करंट, गेन ऑफ द सर्किट, गेन ऑफ द सर्किट नहीं बोलेंगे हम, गेन ऑफ द एम्पलीफायर बोलेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे. सो गेन ऑफ द एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड सो ऑन.
What is the thermal noise? The random fluctuations produced by the thermal agitation of the electrons are called as the thermal or the Johansson noise. जॉनसन ये नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये थर्मल नॉइज़ इन्वेंट किया था या डिस्कवरी किया था. ओके, स्टेट द इक्वेशन. ये इक्वेशन हमें पता है नॉइज़ टेम्परेचर का या नॉइज़ पावर का. पी एन इक्वल्स टू के टी बी वी के टी डेल एफ. हम डेल एफ यूज़ किया है. अब ये बुक में बैंडविड्थ के लिए बी यूज़ किया है. तो यहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी के टी डेल एफ. ओके, या यू कैन राइट बी ऑल्सो. सो बी स्टैंड फॉर द बैंडविड्थ. उसके बाद नॉइज़ वोल्टेज हमने देखा था ई एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 के टी डेल एफ आर. अब डेल एफ की जगह पे फिर से यहाँ पे बी डब्ल्यू ऐसा सिंबल लिखा है. बी इज़ फॉर द बैंडविड्थ. What is the source of the short noise? The fluctuation in the number of electrons constitute the short noise. What is the cause of the partition noise? Cause means what is the reason and what are the effects. Partition noise occurs whenever current has to divide between two or more paths, and partition noise results into due to the random fluctuation in the division of the current. What is the main source of thermal noise and short noise in field effect transistors? In field effect transistors, the main source of the in thermal noise of the conducting channel. सबसे पहले कंडक्टिंग चैनल ये मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ है एफ में. गेट लीकेज करंट. गेट का लीकेज करंट जो होता है हैविंग स्मॉल फ्लक्चुएशंस विद टाइम गिव्स राइज टू द शॉर्ट नॉइज. व्हाट इज फ्लिकर नॉइज? द फ्लिकर नॉइज इज वन विच अपीयर्स बिलो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फ्यू किलोहर्ट्ज. Hat is a cause of the flicker noise in a semiconductor device. Flicker noise arises due to the fluctuation in the carrier density. तो ये 2-3 पॉइंट ज़्यादा है अब इसमें फ्लिकर नॉइज़ वगैरह, तो इतना पढ़ने का कुछ काम नहीं है हमें. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का वो है एक्सप्रेशन फॉर द नॉइज़ पावर, एक्सप्रेशन फॉर द नॉइज़ वोल्टेज. उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉइज़, व्हाट इज़ नॉइज़. ओके, so and next is what define state the equation for the series and parallel connected resistance. तो ई एन इक्वल्स टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ई एन स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर. सो दो नॉइज सोर्सेस है, दो रेजिस्टेंस है तो दो नॉइज सोर्स होगा. तो हमने वैसा ट्रीट किया इसको. स्टेट ट्रू और फॉल्स. इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस डू नॉट जनरेट थर्मल नॉइज. इट इज़ ट्रू. रिएक्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम रेजिस्टेंस का होता है. तो इसीलिए ये ट्रू बात है कि जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स नॉइज जनरेट नहीं करते. डिफाइंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो. इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर एट द सेम पॉइंट. ओके, तो इस पार्ट में किसी को डिफ़िकल्टी है क्या? अभी पूछ सकते हो आप डिफ़िकल्टी. ये सारा हो चुका है लेकिन चलो हमारा सिलेबस मीन्स वी आर एक ही यूनिट बचा है हमारा अब, तो इसीलिए हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं. कल हमने यूनिट नंबर 5 पूरा का पूरा रिवाइज़ किया. आज हम यूनिट नंबर 1 रिवाइज़ कर रहे हैं और अपकमिंग 2 to 3 लेक्चर्स में हम यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 रिवाइज़ कर देंगे. तो फिर हमारा रिवीजन भी ख़त्म हो जाएगा और हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या डिफाइन किया हमने? रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज़ पावर. बाद में क्या है? व्हाट इज़ नॉइज़. ये देखो अनवांटेड सिग्नल. व्हाट इज़ द बेसिक नॉइज़ सोर्स. नेचुरल नॉइज़, मैन मेड नॉइज़. ये पता है हमें, अब वही फिर से रिपीट किया है. देन स्टेट ट्रू और फॉल्स. द ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑफ द कैस्केड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन लेस दैन एनी ऑफ द नेटवर्क. ट्रू. व्हाट इज़ नॉइज़ फैक्टर और नॉइज़ फिगर. नॉइज़ फैक्टर, नॉइज़ फिगर समझ में आता है क्या? नॉइज़ फिगर को ही नॉइज़ फैक्टर भी बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं. सो एलेबल एस एन सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो एट द इनपुट डिवाइडेड बाय द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो एट द आउटपुट. सो पी एन ए बाय पी एन आई. तो इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर. ये जैसे इफिशिएंसी डिवाइड करते हैं हम आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये थोड़ा सा उल्टा है, इनपुट अपॉन आउटपुट है. सो signal to noise ratio at the input and divided by signal to noise ratio at the output. So what is noise figure? The noise factor or the noise figure is expressed in the decibel. It is known as noise figure. For the circuitry, noise figure is 10 log of f.
सो ऊपर का जो रेशो है नॉइज़ पावर का पी SNR डिवाइडेड बाय SNR, तो इसका अगर हमने लॉग लिया और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा. State the equation of the noise factor for the cascade connection. So F equals to F1 plus F2 minus 1 divided by G1 plus F2 minus divided by G1 into G2. Okay. उसके बाद state the overall noise temperature of the cascade connection. So T equals to TE1 plus TE2 divided by G1 plus TE3 divided by G1 into G2 plus and so on. State the minimum value of the noise factor. Very important, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नॉइज़ फैक्टर इज़ 1. स्टेट द आइडियल वैल्यू ऑफ द नॉइज़ फिगर. द आइडियल वैल्यू ऑफ द नॉइज़ फिगर इज़ 0. तो नॉइज़ फिगर 0 होना चाहिए, लेकिन ये आइडियल वैल्यू है, ये होता नहीं है क्योंकि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो हमेशा रहता है, नॉइज़ रहता ही है, इसलिए सिग्नल टू नॉइज़ रेशो रहेगा और उसकी वजह से ही नॉइज़ फिगर रहेगा. लेकिन आइडियली 0 चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए. देन व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन डिफाइन द वाइट नॉइज़. वाइट नॉइज़ इज नॉइज़ विच हैज़ द यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज. वेयर इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम इन सिग्नल इज अफेक्टेड बाय द नॉइज़. चैनल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. चैनल यानी कम्युनिकेशन मीडियम, माइदर वायर्ड और वायरलेस. तो ट्रांसमीटर साइड में ज़्यादा नॉइज़ नहीं आता है, रिसीवर में भी नॉइज़ नहीं आता है, नॉइज़ आता है चैनल में. जैसे कि अभी मैं हेडफोन यूज़ करके ये लेक्चर डिराइव कर रहा हूँ, ये हेडफोन कुछ दूसरे भी सिग्नल को यहाँ पे ला सकता है. ये पंखे का आवाज़ अगर आपको आता होगा तो ये हो गया चैनल की वजह से, यानी ये हेडफोन का जो वायर है इट इज़ व्हाट हियर द नॉइज़ इज़ मोस्टली अफेक्टेड. यहाँ पे ही नॉइज़ ज़्यादा आएगा. ओके. At the high frequency, in which type of noise becomes great importance. Transit time noise बहुत important होता है high frequency पे. What is the effect of the noise power generated if the value of the resistor if thermal noise is double, the noise power generated is unchanged. तो is the input noise voltage is a useful quantity for comparing the noise performance receiver. The input noise voltage is not useful quantity for कंपेयरिंग द नॉइज़ परफॉर्मेंस ऑफ द रिसीवर. तो ये होता है हमारा पहला यूनिट का पूरा रिवीजन. यहाँ पे किसी को डिफ़िकल्टी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. अभी 15 मिनट हो चुके हैं लेक्चर को. सो स्टिल वी आर हैविंग द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. यू कैन आस्क मी डिफ़िकल्टी. और कल मैंने बोला था कि नोट्स अपलोड करने वाला हूँ मैं, आज अभी करता हूँ. मैं अभी नोट्स अपलोड करता हूँ यूनिट नंबर 5 तक. फिर यूनिट नंबर 6 हमारा डिस्कस होने के बाद मैं यूनिट नंबर 6 के भी नोट्स अपलोड करूँगा. ओके. किसी को डिफ़िकल्टी है क्या यहाँ पे कुछ भी? ये रिवाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कुछ डिफ़िकल्टी रहेगी आपको पिछले यूनिट्स में तो वो भी कवर होनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्टूडेंट ही आते हैं तो नो प्रॉब्लम अबाउट दिस, बट स्टिल वी शुड सॉल्व द डिफ़िकल्टी. और डिफ़िकल्टी कब आएगी? जब आप पढ़ोगे, अदरवाइज यू विल नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी. ओके. तो कुछ बचा है क्या डिस्कस करना? आपको क्वेश्चन चाहिए क्या? कुछ पूछना है क्या? एनी भी डिफ़िकल्टी? अदरवाइज आई विल एंड मीटिंग. ओके. तो सो वी हैव रिवाइज यूनिट नंबर 5. यूनिट नंबर 1 भी रिवाइज हो चुका है. अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2, उसके बाद यूनिट नंबर 3, उसके बाद 4. यानी 3 लेक्चर जो कल से होंगे, यानी 3 लेक्चर जो कल से होने वाले हैं हमारे, वो हम रिवाइज ही करेंगे. यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4. और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लेक्चर, 15-20 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि फिर से वो आपका जो नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वो नहीं आना चाहिए. जैसे तो मैं ट्राई करता हूँ 30 मिनट्स का लेने का, लेकिन ठीक है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा 25 मिनट्स या 28 मिनट्स ऐसा ट्राई करता हूँ. ओके. सो वी विल स्टॉप हियर एंड
वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन यूनिट 2 टुमारो। यूनिट 2 कौन सा पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन वगैरह देखना है हमें। उसके बाद है एएम ट्रांसमीटर, उसके बाद है एएम रिसीवर। तो ये 3 पार्ट हमें रिवाइज करने हैं कल से। ओके, थैंक यू। So we will end our discussion, today's discussion, and tomorrow we will continue.